Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS YT channel for this monthly current affairs class for society and social justice for the month of August. So the last time we were for the July month's current affairs for society and current and social justice, and now is the turn of the month of August. So again I extend a very warm welcome to all of you watching and listening to this class. आज जो हमारे पास topics हैं, they are very crucial for Indian society GS paper 1 and social justice, which is a part of your syllabus in GS paper 2 UPSC civil services examination. So we shall start with the first topic of the month and that is a combination of topics, basically one theme, and that is violence against women. तो जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी का ये टॉपिक है वुमन एंड वुमन रिलेटेड इश्यूज में दैट यू सी टू इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स. In one, a former member of parliament was convicted for raping a 48-year-old woman who was a domestic help. And in this case, an Odisha girl who basically was allegedly set afire after the rape. She was subjected to rape, and this incident obviously dominated a lot of headlines in the month of August. Both these news items points towards this issue, this fact that India is basically highly dangerous place for girls and women. The data will testify to this. The data that tells us that crime basically graph on the rise. What this basically says कि 2022 के अंदर 4,45,000 केसेस थे. These cases are relating to women. And 2023 के अंदर 4,48,000 हो गए. The top 5 states where crime against women takes place are listed in this slide. Telangana led in the crime rate at 124.9 per lakh female population. So the range and variety of crimes against women, it's a gamut of the crime sets. अगर हम बात करें जिनमें से स्टॉकिंग भी है, जिसमें से bullying भी है, again online bullying against women these days, online stalking against women these days, misuse of artificial intelligence and other technologies, and creating deep fake images, videos for a targeted harassment of young girls. Apart from that, you have systematic violence against them in the form of molestation, in the form of sexual harassment, in the form of rape also, or acid throw karna. There are many such crimes which are very heinous in nature, और जो कि ये जो जेंडर है इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन है, vast majority of them are subjected to this constant threat which is there. So the question that emerges is why you have violence against women rising? Why it is rising is the question that we have to ask. This is the question that we have to ask, and you will be asked to provide reasons in the mains answers as well. Why the violence against women is deeply systematic in India, is structural in India, deep rooted in Indian social psyche, and despite of the progress and modernization that we seek and see, ये जो violence का ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है. तो पहला रीजन तो इसका ये है कि more and more awareness is there among the women, more and more women are coming out of their homes, so confidence है. तो जब उनके खिलाफ कोई वायलेंस होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो क्रिमिनल नेचर की हो, तो दे आर मोर कॉन्फिडेंट दीज डेज इन रिपोर्टिंग सच क्राइम्स. तो रिपोर्टेज बढ़ चुकी है क्योंकि अवेयरनेस है, इसलिए रिपोर्टेज इन क्राइम्स की बढ़ गई है, इसीलिए ग्राफ जो है हमें ज्यादा दिखाई देता है. दूसरा स्ट्रक्चरल रीजन है इंडियन सोसाइटी का, दैट वी आर सिंपली ए पैट्रियार्कल सोसाइटी. Patriarchy is nothing but systematic domination of men over women across all the segments of society, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे रिलीजन हो, हर जगह हमें महिलाओं के ऊपर पुरुषों का सिस्टमेटिक डोमिनेशन दिखाई देता है. तो पैट्रियार्कल सेटअप के कारण गर्ल्स एंड वुमेन दे आर नॉट सिंपली ट्रेन्ड टू सीक और बिहेव कॉन्फिडेंटली. दे आर ऑलवेज अंडरमाइंड, देयर लाइफ चॉइसेस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड. तो जब हम पैट्रियार्की के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कंट्रोल की, कंट्रोल ओवर वुमन चॉइसेस, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कहीं विजिट करना हो, हर ऐसे एक्शन के ऊपर
मेल डोमिनेंस हमें दिखाई देता है, मेल डोमिनेंस इन द फॉर्म ऑफ फादर्स डोमिनेंस, ब्रदर्स डोमिनेंस, हस्बैंड डोमिनेंस। तो ये हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो कंट्रोल के बारे में बात होती है, रेगुलेशन के बारे में बात होती है, डोमिनेशन के बारे में बात होती है जब पैट्रियार्की की बात हो रही है। तो जो माइंडसेट है, जो साइकी है, वो है कि कैसे महिला और लड़की को डिसिप्लिन किया जाए। व्हेन इट गेट फेल्ड, तो इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटल रिस्पॉन्स हमें दिखाई देता है कि एसिड फेंक देना, कंटिन्यूअस हरासमेंट करना, फिजिकल वायलेंस करना, ये सब कुछ वहां हमें दिखाई देता है। तो स्ट्रक्चरल ये प्रॉब्लम है, इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो लॉ इन्फोर्समेंट की है, बिकॉज लॉ इन्फोर्समेंट इज फेलिंग। चाहे वो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में रेप हो, चाहे वो उड़ीसा का रेप हो, या फिर और विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में जिस तरह की घटनाएं होती है, लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर ये क्लियर कट दिखाई देता है। क्लियर कट ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। पुलिस इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू वुमेन कॉजेज एंड इश्यूज, और जिसकी वजह से और भी उनके इश्यूज हैं, शॉर्टेज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं फॉर एग्जांपल। दे आर नॉट टेक्नोलॉजिकली वेरी स्किल्ड एंड सेवी, तो जो आजकल डिजिटल क्राइम होते हैं अगेंस्ट वुमन, उसमें उनको इश्यूज होते हैं। ये भी एक एस्पेक्ट है। देन यू हैव सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन, द सोशो इकोनॉमिक रियलिटी दैट वी लिव इन। जैसे ये जो मेंबर ऑफ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का केस हुआ था, domestic help of 48 years of age was raped. तो ये एक इशू है that girls and women are not financially free. Vast majority of them are not. So they are forced to work as domestic help. They are forced to work in informal sector. They are forced to work in unorganized sector. तो जहां पे सोशल सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो काफी मिनिमल होते हैं, इफ नॉट absent. ये भी एस्पेक्ट है। और जो इंपॉर्टेंट लॉज बनाए गए हैं महिला सुरक्षा के लिए, चाहे वो पॉस्को एक्ट हो, गर्ल चाइल्ड के लिए 2012 में जो बनाया गया था, या फिर वो प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक क्राइम के लिए एक्ट बनाया गया था, या फिर डाउरी एक्ट हो 1961 का। तो जो इस तरह के इंपॉर्टेंट कानून भी हैं, इनके बारे में अवेयरनेस कई जगहों पे काफी कम होती है, और दूसरा पुलिस भी इफेक्टिवली इनको इंप्लीमेंट नहीं करवा पाती। और आजकल जो बहुत डोमिनेंट थीम निकल के हमारे सामने आ रही है वो है टेक्नोलॉजिकल। दिस इज वे टू डोमिनेंट दीज डेज। तो एआई के दौर में, डिजिटल एरा दैट वी आर लिविंग इन, सो डीप फेक फॉर एग्जांपल दीज डेज, व्हेन दे डॉक्टर द वीडियो कंटेंट और ऑडियो कंटेंट, तो उसके कारण भी टारगेटेड हरासमेंट होता है, बुलिंग होती है स्कूल्स के अंदर। ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, दैट ऑल्सो कॉजेज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये सारी जो एस्पेक्ट हैं, दे आर देयर, एंड बिकॉज ऑफ विच ये जो क्राइम है इस ये बढ़ता जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है कॉन्फिडेंट वुमन का इमरजेंस। कॉन्फिडेंट वुमन हु इज कॉन्फिडेंट on taking on the society's norms, regressive customs, etc. So when they go out and wear what they want to wear, they eat what they want to eat, they marry whom they want to marry, date whom they want to date, जो रिएक्शन है सोसाइटी का वो काफी वॉयलेंट हो जाता है, जिसके कारण हमें ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। प्लस यहाँ पे एक जो एस्पेक्ट है वो इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स जो हैं ये कास्ट रिलेटेड होते हैं। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट वायलेंस है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। मणिपुर के अंदर हमने देखा कि इसमें एक इथनिक अंडरटोन भी थी वायलेंस अगेंस्ट वुमन में, रिलीजियस अंडरटोन होती है। जब राइट्स होते हैं तो वुमन बिकम्स द वेरी सॉफ्ट टारगेट फॉर ऑल कास्ट, इथनिक, रेशियल, लिंग्विस्टिक मॉब्स who go out on the rampage. They take revenge on the other community by targeting their women. तो काफी मेडिवल ये आइडिया है, लेकिन nonetheless it is there. और all factors combined we look into this situation जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हो रही है। ये एक सत्य है जो कि है, that is a truth which is of basically reflect on India's contemporary socio-economic political reality. अब इसके बेसिस पे जो सवाल बनेगा मीन्स के अंदर वो इस तरीके का होगा। रिसेंटली वी हैव विटनेस्ड ए डिस्टर्बिंग राइज इन रेप एंड सेक्सुअल वायलेंस केसेस अक्रॉस इंडिया, चाहे वो आरजी मेडिकल कॉलेज हो कलकत्ता का, उड़ीसा वाला केस हो, कर्नाटका वाला केस हो, जो फेमस केसेस हैं। डिस्पाइट स्ट्रिक्टर लॉज एंड ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस, एनालाइज द मेजर causes behind the persistence of such crime against women and suggest effective measures to ensure their safety and dignity. 250 words, 15 marker. This is how they will frame the question. क्योंकि जो violence का trend, जो famous cases हैं, they have to be mentioned
in the answer, so that the examiner should also get to know that you are aware of the contemporary जो सिचुएशन देश के अंदर डेवलप हो रही है. इसीलिए जो करंट अफेयर्स होता है वो इतना सिग्निफिकेंट होता है, तुम्हारे आंसर को क्वालिटेटिवली बेटर बनाता है, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड बनाता है और रेलेवेंट बनाता है, एंड इट गिव्स यू एक्स्ट्रा मार्क्स. आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है बीजेपी स्लैमिंग एनसीपी एमएलए सनातन धर्म रिमार्क्स. सो दिस इंडिविजुअल called the people who were opposed to social reformers as Sanatana terrorists. There was few months back a case from Tamil Nadu जहां वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सनातन धर्म इज लाइक ए मॉस्किटो और मलेरिया और डेंगी एक्सेट्रा. So that was also categorized as hate speech. This will also be categorized as hate speech. So this is a very thin line. There the argument is between the right to freedom of religion, आर्टिकल 25 जो हमारा भारतीय संविधान हमें देता है अधिकार अपने रिलीजन को मानने का, प्रोपोगेट करने का, और दूसरा जो आइडिया है सोशल रिफॉर्म का. सो द रियल क्वेश्चन हियर इज कि इफ ए रिलीजन, वी आर इंटरेस्टेड इनटू द डिबेट, इफ ए रिलीजन is discriminating against its adherents, a class of believers. अगर religious institutions, religious structure, religious norms अपने ही जो followers हैं उनमें से किसी क्लास को के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो, उनको सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना हो, डिसेबिलिटीज का सामना हो, तो क्या ऐसी सिचुएशन में उस रिलीजन के अंदर रिफॉर्म करने को अगर बात की जाए, पुश करने की उसको बात की जाए, सो विल दैट बी कंसीडर्ड एज हेट स्पीच इफ एनी सच स्पीच एग्जिस्ट or any such attempt exist to reform the religious practices will be termed as hate speech or against, basically a violation against right to religion, article 25. तो ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई विल एक्सप्लेन दिस इशू नॉट फ्रॉम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल बट मोस्टली फ्रॉम इंडियन सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू. क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वे? सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक सनातन धर्म. पे अटेंशन, सनातन धर्म, this is also invariably called as Brahmanical religion in many cases that you see. It is also called as Hinduism as the popular modern name. Some also refer to it as Vedic faith. So there are many names of the same thing. However, the connotations may be different depending on the regional context. तो यहां पे हमें ध्यान देना, सनातन धर्म मीन्स ए फेथ, ए रिलीजन विच इज ऑन गोइंग सिंस एंटिक्विटी. सनातन विच इज फ्रॉम एंटिक्विटी, फॉरएवर, उसको हम बोलते हैं सनातन इन संस्कृत. Then you have Brahminical religion. This is not the Brahmin caste or Varna of the Hindu social order. यहाँ पे because most of the text, the Upanishads and the Vedas and the core जो philosophical text हैं इस faith के, यहाँ पे जो indivisible entity है, the entity basically whom we modern Indians in of Hindu faith refers to as Bhagwan. अगर हम हिंदू टेक्स्ट को देखें, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं प्रॉपरली, उपनिषद, वेदास, जो इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट हैं, जो फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, उस टेक्स्ट हैं, उनको अगर हम देखें तो उसमें जो इनडिविजिबल एंटिटी है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट जो एंटिटी है, उसको कहा जाता है ब्राह्मण. दिस इज नॉट द कास्ट, दिस इज बेसिकली द एंटिटी. जैसे इस्लाम के अंदर अल्लाह, in Christianity there is a God. So here also in Vedic text this is called as Brahman, the reality which is permanent, which is omnipresent, which is omnipotent. उससे हम बोलते हैं ब्राह्मण. तो उसके बेसिस पे जो रिलीजन है उसको बोलता है, कहा जाता है ब्राह्मणिकल रिलीजन. इट्स नॉट द वर्ना. मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड. ये वर्ना नहीं है, ये वाला ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट है. Then you have Hinduism, which is very easy to understand for all of us because that's how we refer to the modern faith. And then you have Vedic faith also. That is also there. This is also very easy to explain. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये सनातन धर्म के बारे में बात हो रही होती है तो बेसिकली दे आर रेफरिंग टू
the conservative elements, the regressive elements, the fundamentalist elements of this faith in their minds. This is what they are referring to. तो देर आर ब्रॉडली फोर सेट ऑफ फोर्सेस जो इस पूरी फेथ को अपोज करती है, ये समझना बहुत जरूरी है. Who are the ones who are opposing the faith? This is the faith which is being named differently invariably. Both, all of them are the same. तो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं? पहली जो फोर्स अपोज करती है इस पूरे फेथ को, दिस इज फेथ, धर्म, हिंदू धर्म जिसको अपोज करती है, वो है मॉडर्नाइजेशन की फेथ वेव. तो मॉडर्नाइजेशन जो करंट्स हैं, दे अपोज दिस फेथ मॉडर्नाइजेशन विच केम इनटू इंडिया बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. जब ब्रिटिश राज इंडिया में आया तो ब्रिटिश थिंकिंग, ब्रिटिश बुक्स, ब्रिटिश वैल्यूज, ब्रिटिश कस्टम्स, ब्रिटिश वे ऑफ थिंकिंग बिकेम वेरी पॉपुलर. तो जो मॉडर्निटी का जो आइडिया है, प्रोग्रेस का, लिबर्टी का, फ्रेटर्निटी का, इक्वालिटी का, ह्यूमनिज्म का, फ्रीडम का, ये जो आइडिया है ये डोमिनेंट हो गया इंडियन सोसाइटी के अंदर. एंड देयर हैव बीन मेनी रिफॉर्मर्स हु विल फोकस और एम्फेसाइज ऑन इट ए लॉट. और वो अपोज करेंगे जो प्रैक्टिसेस रही हैं, सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस रही हैं फेथ के अंदर, जैसे विडो रिमैरिज का अपोजिशन, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो इसको वो अपोज करेंगे किसके बेसिस पे? मॉडर्नाइजेशन के बेसिस पे. साइंस को हथियार बनाया जाएगा टू टारगेट द फेथ. साइंस को अधिकार बनाया जाएगा. क्या इन केस यू गेट इल, डोंट गो टू एनी पुजारी और डोंट गो टू एनी तांत्रिक, यू शुड गो टू ए डॉक्टर. ये आइडिया क्या है? मॉडर्नाइजेशन का आइडिया जो फेथ को अपोज करेगा. दूसरा यहां पे जो करंट है विच अपोजेस हिंदुइज्म और सनातन धर्म, हियर इन दिस केस इज सिंपली द people of different faith, different religions. So as we will be interested into, जो रिलीजन्स हैं दे ऑल्सो बिहेव लाइक ए मार्केट प्लेस थिंग. मार्केट में एक प्रोडक्ट है जिसकी काफी डिमांड है, कई सारे कस्टमर्स हैं, डिफरेंट कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाने लगती हैं क्योंकि उसमें डिमांड है उस प्रोडक्ट की. कोई एसी की कंपनी है, मल्टीपल कंपनीज इंडिया में एसी बनाती हैं और बेचती हैं, तो सब अपने एसी को बेस्ट एसी बताते हैं. तो देयर इज ए कंपटीशन इन द रिलीजियस मार्केट, तो जिसके कारण पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, many motivated individuals, they oppose the faith. That is also true. Hinduism also in a way opposes these faiths for the same very reason. तीसरा यहाँ पे जो एस्पेक्ट निकल के आता है, बेसिकली द करेंट्स विच अपोजेस द हिंदू धर्म, अगर उसे हम देखें सनातन धर्म कहें, तो बेसिकली द पीपल हु एडवोकेट सोशल रिफॉर्म. रिफॉर्म को जो लोग सपोर्ट करते हैं, दे बिलीव कि दिस फेथ हैज सम स्ट्रक्चरल इश्यूज, जैसे इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. तो इससे बचने के लिए वी हैव टू ईदर लीव द फेथ, जो कंप्लीटली आउट की बात करेंगे, दे वांट टू गो आउट ऑफ द सिस्टम. एंड देयर आर पीपल जो चाहते हैं कि विद इन सिस्टम में रह के ये रिफॉर्म किया जा सके. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू हैव टू पे अटेंशन टू. अब ये मोस्टली ये जो अपोजिशन की बात हम करते हैं, जब हेट स्पीच के बारे में बात होती है, would it be considered as a hate speech if some reformer in Islam opposes the basic tenet of Islam? So this is the fine line that one has to take. कैसे इसको हम फाइन लाइन इसमें ले सकते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. क्योंकि अगर रिफॉर्म के बारे में बात करें, you cannot demolish the system for social reform without violating people's right to freedom of religion. This is the core thing here. कैसे करेंगे? तो social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar of that era, Vivekanand, they will take or put a lot of emphasis on the core Hindu faith. जो ये जो ब्राह्मणिकल रिलीजन जिसे कहा जाता है, इसमें जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, उपनिषद और वेदास, आर्य समाज जैसे कहेगा बैक टू वेदास, to remove the impurities and corruption that has taken place in Hindu society, etc. So primarily ये तीन forces हैं जो anti faith forces हैं इंडिया के अंदर, और many a times common positions लेते हैं तीनों, लेकिन जो इंटेंट है, जो मोटिव है, वो बहुत अलग है. तीनों का इंटेंट और मोटिव तीनों का बहुत ज्यादा अलग है. यस, इसमें जो चौथा फोर्स हम ऐड कर सकते हैं, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल believers who believes in constitutional morality, who basically look into the
into this idea of faith as communal versus secular binary. तो उसका वो पॉलिटिकल और जो कल्चरल इम्पैक्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस फेथ को एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि बिकॉज ये डोमिनेंट होती जा रही हिंदुत्व की बात होती है, बिकॉज विच इज ए एग्जाम्पल ऑफ कम्युनलिज्म। और सेकुलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेथ को क्रिटिसाइज किया जाता है कि सेकुलरिज्म के लिए वी हैव टू लिमिट द कल्चरल असर्शंस रिलेटेड टू हिंदुइज्म और द फेथ एज आई एम कॉलिंग इट। तो प्राइमरली ये चार फोर्सेस हैं, चारों का इंटेंट अलग है, मोटिव अलग है, लेकिन फॉर आर डिस्कशन वी हैव टू फोकस ऑन द सोशल रिफॉर्म पार्ट, क्योंकि इस वाले एग्जांपल में भी विच आई हैव साइटेड, यहां पे द पर्सन हैज यूज्ड the word that calling those opposed to social reformers as Sanatana terrorist. He also said there was never any religion called Sanatan Dharma. We are followers of Hindu Dharma. So here also he is making that distinction. Because I said Sanatan Dharma को mostly associate किया जाता है किससे? ब्राह्मण डोमिनेंस से, कंजर्वेटिव डोमिनेंस के साथ, जो रिएक्शनरी एलिमेंट है फेथ के उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। हालांकि जो बिलीवर्स हैं ऑफ ऑल फोर, दे विल नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अनदर। दिस इज एन आइडिया दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड यू हैव टू सी इट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। आई होप कि तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इमेजिनेशन है, वो वाइडन अप हुआ है इस डिस्कशन के बाद। चारों क्रिटिसाइज करते हैं, दे विल मीट एट द सेम पॉइंट, हाउएवर जो इंटेंट है चारों का वो बहुत ही अलग है क्रिटिसाइज करने का और असेस करने का। तो सवाल जो बनेगा सोसाइटी पेपर में, जीएस पेपर 1 में, वो ऐसा बनेगा कि सेवरल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैव हिस्टोरिकली challenged regressive religious practices in pursuit of equality and justice. Discuss how the idea of social reform can coexist with the constitutional right to freedom of religion in a diverse society like India. 250 words, 15 marker. Just attempt to write this question. It's a very beautiful question. इसके ऊपर सवाल आ सकता है क्योंकि ये काफी चर्चा का विषय रहा है about Sanatan Dharma, about Brahmanical faith, which is being called most like dengue और malaria और terrorist example. ये सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं इसमें। क्लियर है? चलो, इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है। तीसरा सोशल जस्टिस जुड़ा हुआ टॉपिक है, वो है नमस्ते स्कीम का। नमस्ते हेल्पलाइन कनेक्टिंग इंडियाज वेस्ट पिकर्स टू सपोर्ट एंड डिग्निटी। नमस्ते स्कीम्स ब्रिंग सेफ्टी, डिग्निटी, 85,000 सैनिटेशन वर्कर्स कवर्ड, एक्सेट्रा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स कॉल्ड सैनिटेशन वर्कर्स। These workers are the backbone of India's Swachh Bharat Abhiyan. The backbone of India's Swachh Bharat Abhiyan. However, this is also a story of marginalization, of structural inequality, of discrimination, of negligence on part of the administration, which leads to unfortunate deaths of these workers when they indulge in manual scavenging most of the times. तो सीवर लाइन के अंदर उतर के these individuals they clean those lines without safety equipment, without any institutional support, and many a times ऐसा होता है कि वहां टॉक्सिक गैसेस एक्यूमुलेट हो जाती हैं और सडनली इनकी डेथ भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड और टू टैकल दिस प्रॉब्लम दिस स्कीम। ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये सन 2023 में लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि सेफ्टी, डिग्निटी और वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स को इंश्योर किया जाए। सारा ये जो प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन का, इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस का, ये यहाँ पे इंटरसेक्शनल हो जाता है जब हमें ये मालूम पड़े कि most of these sanitation workers are what? Whom? They are Dalits. And that too, within the broader category of Dalits, there is a very disadvantaged section जो कि इस काम में involved है। दलित इज ए जेनरिक टर्म जो कि सारी जो अवर्णा कास्ट है उनको कहा जाता था, माइनस ट्राइबल्स। तो ये काफी बड़ी फैमिली है जिसमें कई सैकड़ों जातियां आती हैं, जिनमें से कुछ जातियां हैं जो आज भी स्कैवेंजिंग के काम में लगी हुई हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग के काम में हैं, एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन दैट वी सी। तो यहाँ पे मैकेनाइज्ड इसको करना, वर्किंग को मैकेनाइज्ड करना, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करना क्लीनिंग के लिए सीवर लाइंस को, इसको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम
लॉन्च की गई थी। इसके जो के कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? पहला जैसे है प्रोफाइलिंग ऑफ सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स। द गवर्नमेंट शुड नो, दे शुड हैव द डेटाबेस कि कौन वर्कर हैं, कहाँ काम करते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनका स्किल सेट क्या है, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। दूसरा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग एंड पीपी किट्स डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, पर्सनलाइज्ड सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे तो जानें बहुत ज्यादा बचाई जा सकती हैं। सपोर्ट फॉर सेफ्टी सर्विसेज, डिवाइसेस फॉर सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, लाइवलीहुड सपोर्ट, एंटरप्राइज डेवलपमेंट इज वेरी क्रिटिकल। सरकार चाहती है कि इनमें से बहुत सारे लोग इस काम को छोड़ के दूसरे कामों में लगे, इसलिए उनको स्किल सेट देना, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना। रिमेंबर, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डूइंग दिस वर्क बिकॉज दिस इज इकोनॉमिकली remunerative. They are doing it because of cultural reasons. They are doing it because they don't have any other skill. Convergence of Ministry of Social Justice schemes and Ministry of Home Affairs programs, information education and communication campaign, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, और MIS a dedicated website has also been created to fast track these efforts. ये है कोर कंपोनेंट नमस्ते स्कीम के। इसके अलावा जो माइलस्टोन इस स्कीम ने अचीव किए हैं 2 सालों के अंदर अंदर, 2026-27 तक ये स्कीम चलनी है। इसमें अभी तक माइलस्टोन है कि 85,000 लगभग सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैव बीन वैलिडेटेड। 54,000 बेनिफिशियरीज हैं जिनको आयुष्मान भारत के अंदर कवर किया गया है। लगभग 46,000 पीपी किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, कैपिटल सब्सिडी भी दी गई है, सेफ्टी डिवाइस किट्स दिए गए हैं, वर्कशॉप्स हैव बीन कंडक्टेड। ये स्कीम बहुत ही क्रूशल है। दीज आर जस्ट नॉट नंबर्स, डोंट लुक एट दिस डेटा as numbers only. These are not only numbers. This is a story of extending human dignity to these people. This is in continuous conscious efforts by the government to ensure कि a sense of dignity is provided to these individuals, जो कि बहुत ही क्रूशल काम करते हैं और स्वच्छ भारत अभियान का बैकबोन है, एज आई सेड। तो यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स को एड्रेस करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, डिग्निटी और सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, और ड्राइविंग सिस्टमेटिक चेंज थ्रू मैकेनाइजेशन को लाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। तो नमस्ते स्कीम इज ए वेरी क्रूशियल स्कीम इन इंडियाज एफर्ट ऑफ मिटिगेटिंग द मैनुअल स्कैवेंजिंग प्लस रिलेटेड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स लाइक डेथ्स। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा सरकार क्या कर चुकी है टू टैकल दिस इशू? पहला 2013 का कानून है, एक प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट। तो भारत सरकार की तरफ से, भारत की पार्लियामेंट की तरफ से कानून पारित किया गया। हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर आजकल मैनुअल स्कैवेंजर्स को अपॉइंट ही नहीं किया जाता, उनको रिक्रूट नहीं कर रही है सरकार, लेकिन ये काम वो आउटसोर्स कर रहे हैं प्राइवेट एंटिटीज को, जो कि हायर करते हैं इन वर्कर्स को। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये लॉ इज वेरी ओवरआर्चिंग लॉ, वेरी कॉम्प्रहेंसिव लॉ विच इज वेरी रेलेवेंट ऑल्सो। दूसरा, SRMS स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो कि वन टाइम कैश असिस्टेंस दे रही है इन वर्कर्स को। स्वच्छ भारत मिशन इज वेरी क्रिटिकल। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि कंसेशनल लोन देता है, स्किल डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहा है। वी हैव आल्सो सीन इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट्स, जो इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करती हैं जब कभी भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स रिलेटेड। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे। सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स भी हैं कंपनसेशन के, अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए तक का कंपनसेशन। और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स भी हैं, जैसे एक्सटेंडिंग द इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू द पीपल, दीज सैनिटेशन वर्कर्स। तो इतने सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं टू इन ए वे प्रोवाइड असिस्टेंस टू द सैनिटेशन वर्कर्स इन इंडिया। तो ये एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक है। नमस्ते स्कीम इज वेरी क्रूशल। उसके ऊपर आई हैव लिस्टेड ऑल दीज इनिशिएटिव्स फॉर योर कंसिडरेशन। सो दिस इज द जीएस पेपर 2 टॉपिक सोशल जस्टिस। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट टू नो अबाउट केरला's proposed policy to empower its elderly population. So we are going to talk about elderlies, not only focused on
केरला's पॉलिसी, बच्चों की केरला ने ये प्रपोज्ड पॉलिसी लाई जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई, इट वाज इन द न्यूज, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। एल्डरलीज 60 इयर्स प्लस पॉपुलेशन, अगर हम देखें मिलियंस की बात करें तो 2006 से लेके अभी तक का जो डेटा है वो हमें बताएगा कि जो ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है। लुक एट दिस, मेल फीमेल टोटल, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लुक एट दिस डेटा, प्रोजेक्टेड शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया एंड स्टेट्स, ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट ऑन द टेक्निकल ग्रुप और पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। तो 2036 में क्या सिचुएशन होगी, 21 वर्सेस 2036, ये रिपोर्ट का डेटा है। तो बिहार में अभी 7.7% लोग एल्डरली कैटेगरी में आते हैं। आज से 2021 की तुलना में 2036 मतलब 15 साल बाद ये नंबर हो जाएगा 11%। टॉप स्टेट देख लिया, अब बॉटम स्टेट देखो। बॉटम में कौन है, केरला है, केरला की जिसकी स्कीम आई है, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दे आर प्रपोजिंग सच ए स्कीम, क्योंकि 16.5% एल्डरली हैं, 2036 तक लगभग 23% हो जाएंगे। तो 23, ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ देयर पॉपुलेशन विल बी एल्डरली। और ये जो ग्राफ है, एज यू कैन सी, इट इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल द स्टेट्स। मोस्टली जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ के स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन फिर भी 15% के नीचे होगी। जो डेवलप्ड हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की ज्यादा है, नॉर्थ इंडियन, ये सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स की, और जो ये कोस्टल सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं इनकी कम है। हिमाचल प्रदेश एक एक्सेप्शन है नॉर्थ इंडिया का, जहां एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ने जा रही है। सो द क्वेश्चन इज हियर कि if a quarter of your population is elderly, what are going to be their requirements when it comes to health, when it comes to skill set, when it comes to life expectation, living life well with medical help also, all sort of these things will be under discussion। इसीलिए जो पॉलिसी है केरला स्टेट की, वो ये पॉइंट्स लेके आई थी पॉलिसी के। जैसे वो कह रहे हैं कि एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल कार्डर बनाया जाएगा फॉर एल्डरली केयर। डेडिकेटेड कार्डर, ये क्योंकि गेरियाट्रिक हेल्थ केयर यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, जैसे पीडियाट्रिक हेल्थ केयर होती है बच्चों के लिए, वैसे ही गेरियाट्रिक हेल्थ केयर होती है एल्डरलीज के लिए। तो एक प्रोफेशनल कार्डर बनाना जरूरी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, जो कि गेरियाट्रिक हेल्थ केयर तरफ स्किल सेट उनका होगा। फिर है 2 न्यू बॉडीज का एस्टैब्लिशमेंट, जैसे वयो योजना कमीशन फॉर रेगुलेटरी ओवरसाइट और वयो योजना काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एल्डर नेबरहुड ग्रुप्स, हर लोकेलिटी में बनाया जाएगा ताकि सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रमोट की जा सके। देन यू हैव स्ट्रॉन्गर लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन, जैसे केरला स्टेट एल्डरली कमीशन has established by the 25 Act to monitor rights, इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्टेटस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, और एजिंग विद डिग्निटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। ये है प्राइमरली टॉपिक्स जो उन्होंने रेस किए। और केरला की जो जनसंख्या है एल्डरली की, एज आई सीन, वी हैव सीन कि वो बढ़ती जा रही और आगे और बढ़ेगी। इंडिया के साथ भी यही बात है। 76-71 में अगर हम देखें डिकेडल ग्रोथ ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन 32.3, 32, 31.3, सडनली नियर बाय दिस सेंचुरी जब आती है, जो डिकेड्स पिछले बीते हैं, 35.2, 35.5, अभी देखो 2021 से 31 के बीच में जो ग्रोथ होगी वो 40.6 होगी। ऐसा क्यों है? Because in this phase the number of people who were born in the 50s and 60s and 70s and 80s were quite high। उस वक्त जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी काफी ज्यादा थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बढ़ी है, पीपल आर लिविंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसके कारण ये हो रहा है कि नंबर्स हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वी आर ऑल्सो एजिंग, हमारी अभी एनुअल जो मीडियम एज है भारत की, भारतवर्ष की जो मीडियन एज है वो लगभग 28 साल है, लेकिन वी विल ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज एन एल्डरली सोसाइटी, ए वेरी मास मेजोरिटी ऑफ अस, बाय 2050 फॉर एग्जांपल। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये काफी कम समय के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा। तो अब सवाल ये आता है कि अगर एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है देश के अंदर, वॉट एवर रीजन आर देयर, तो व्हाट कुड बी द पॉलिसी इंप्लीकेशंस, क्योंकि इनकी जो नीड्स होंगी एल्डरलीज की बहुत डिफरेंट होंगी।
दे विल बी डिपेंडेंट, मास मेजोरिटी ऑफ देम विल नॉट हैव एनी सोशल प्रोटेक्शन, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई पेंशन नहीं, जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है फैमिली का, जॉइंट फैमिली का, न्यूक्लियराइजेशन बढ़ रहा है, जो मॉडर्नाइज्ड वैल्यूज हैं ऑफ इंडिविजुअलिज्म, हेडोनिज्म, कंज्यूमरिज्म, उसके कारण जो डिग्निटी है एल्डरलीज की, इट इज डिक्लाइनिंग इन द सोसाइटी। ये सारे एस्पेक्ट्स भी हैं, कल्चरल चेंज है, वैल्यू बेस्ड चेंज हमारे यहाँ सामने है। तो यू विल नीड ए सिस्टमेटिक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट दिस पॉपुलेशन सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। तो भारत सरकार बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आई है जो इनकी मदद के लिए हैं, प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, जैसे केरला का इनिशिएटिव है, हमने उसे देखा। व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग, दिस इज द की। तो यहां पे हमें ध्यान देना, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है वो है मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग 2002 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एल्डरली जो सेगमेंट है पॉपुलेशन का, उसके लिए। जैसे यहाँ पे जो कोर बातें कही गई 3 प्रायोरिटी एरियाज में, पहला एरिया है कि मेन स्ट्रीमिंग एजिंग इन पब्लिक पॉलिसी इन जनरल। पब्लिक पॉलिसी जब बने उसमें एल्डरली पॉपुलेशन के लिए भी एक कॉलम होना चाहिए। दूसरा, हेल्थ एंड वेलबींग जो है उसके ऊपर फोकस कर रहा है हमें एल्डरलीज की। और तीसरा, यहां पे जो बात कर रहे हैं कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है एल्डरलीज के लिए, जैसे हाउसिंग, लिविंग एनवायरनमेंट, केयर, फेवरेबल एटीट्यूड्स, एक्सेट्रा। So for all of that, you need dedicated policy and programs. I'm sorry. जैसे ये जो लिस्टेड है, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन 1999, ये पॉलिसी है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम विच गिव्स पेंशन, assured pension to 60 years plus people। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये भी एक पेंशन स्कीम है। अटल पेंशन योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, आयुष्मान भारत के अंदर उनको कवरेज दिया जा रहा है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें उनको असिस्टेड लिविंग के लिए जो मेडिकल डिवाइसेज हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हियरिंग हमारी वीक हो जाती है, जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, आई साइट हमारी कमजोर हो जाती है, यू नीड डिवाइसेस टू असिस्ट योर लिविंग, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोविजंस किए गए हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 का जो कानून है बहुत ही रेलेवेंट है। देन अटल वयो अभ्युदय योजना एंड एल्डरली लाइन फॉर देयर ग्रीवियंस रिड्रेसल, जिसका नंबर है 14567। ये इनिशिएटिव्स भारत सरकार के प्राइमरली हैं, जिनमें प्राइमरली हमने क्या देखा कि एक पॉलिसी है, एक एक्ट है, कुछ स्कीम्स हैं जो कि टारगेट कर रही हैं किसको, हाउसिंग को, हेल्थ को, आजकल स्किल सेट के ऊपर भी स्किलिंग के लिए भी फोकस किया जा रहा है एल्डरलीज के लिए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं ताकि कैसे हमारी जो पॉपुलेशन जो कि 60 ईयर प्लस है उनको हम मदद पहुंचा सके। दिस इज द की। अब इसके ऊपर जो सवाल बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग ए रैपिड डेमोग्राफिक शिफ्ट टुवर्ड्स एन एजिंग पॉपुलेशन, दिस इज ए फैक्ट जो कि मेंशन किया गया है। उसके बाद क्रिटिकली इवैल्यूएट the governments of India's policy initiatives and institutional measures for ensuring financial security, healthcare, and social protection for the elderly। 250 words, 15 marker। ये सवाल है। तो एक ओवर आर्किंग चर्चा है कि पॉलिसी जो 1999 की थी उसको चेंज करने की जरूरत है। देयर इज अ नीड फॉर ए न्यू पॉलिसी रिफ्लेक्टिंग द टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल चेंजेस दैट वी हैव सीन इन द लास्ट 25 years। तो ट्राई टू राइट एन आंसर ऑन बेसिस ऑफ दिस। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है केविन सिल्वास गणेश मर्डर शोज why the creamy layer is not protected from caste violence। So this case dominated the headlines in the month of August। This is an individual, an engineer, well educated, coming from a Dalit family। His only crime, he fell in love with an OBC girl in the state of Tamil Nadu, because of which the girl's brother hacked him to death। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि
कास्ट और क्लास. See, this guy, this person, this individual belong to what? Belong to scheduled caste. His caste is Dalit. His class was also up higher. He belonged to the middle classes, जिसे हम कहेंगे. इंजीनियर था, वेल एजुकेटेड. तो कास्ट सिस्टम के अंदर ही बार बार सवाल उठता है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मोबिलिटी हो रही है सोसाइटी में, यस, जो दलित फॉर्मरली दलित कास्ट हैं या अनटचेबल सो कॉल्ड्स हैं, which are the people belonging to these groups, they are moving to higher strata in the society. They are accumulating capital, ऐसा कमा रहे हैं. They are accumulating status. They are working as lawyers, doctors, engineers. समाज में status भी मिल रहा है. And they are also, अगर हम देखें, accumulating power as political parties, as pressure groups, as power brokers, individuals power brokers. तो despite of the fact कि यहां पे सोशल मोबिलिटी है, कास्ट की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है. कास्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कास्ट? कास्ट इज ए सेगमेंटेड सोशल यूनिट. इट्स ए सेगमेंटेड सोशल यूनिट deriving its existence from the Varna framework of Hinduism. वर्ना फ्रेमवर्क कहता है कि देर आर 4 वर्णास जिसके बारे में हम जानते हैं सभी: ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस. ये 4 वर्णास हैं. तो वर्ना फ्रेमवर्क से जो सेगमेंटेड सोशल यूनिट और स्ट्रक्चर डिराइव्ड है उसको हम बोलते हैं कास्ट. तो कास्ट प्राइमरली अगर हम देखें, इट इज मेड ऑफ 3 थिंग्स. पहला, रिचुअल हायरार्की. वर्ना सिस्टम हमें रेफरेंस देता है कि रिचुअली कौन सी जात, कौन सी कास्ट ऊपर है और कौन सी कास्ट नीचे है. दूसरा, अगर हम बात करें तो इसमें है ऑक्यूपेशन, इनहेरिटेड ऑक्यूपेशन. जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट का ऑक्यूपेशन था, जो फादर का ऑक्यूपेशन था, वही तुम्हारा ऑक्यूपेशन होगा. और तीसरा, इंडोगैमी. यू विल मैरी विद इन योर ओन कास्ट. ये कोर है कास्ट के. कास्ट है क्या और कास्ट का कोर क्या है? नाउ दिस गाय who belong to this caste, but however जिसने सोशल मोबिलिटी की, ऑक्यूपेशन चेंज किया, he became an engineer, he became an educated person. और ये सारी जो फैसिलिटी है मोबिलिटी की क्यों मिल रही है? क्योंकि मॉडर्निटी है समाज के अंदर. समाज में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, विच इज कमिंग बिकॉज ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के संविधान के कारण. और भारत में जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल मॉडर्निटी है उसके कारण ही हो रहा है. तो ऐसा होता है. तो यू विल मीट, ऑब्वियसली, व्हेन यू विल स्टडी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, व्हेन यू विल वर्क इन offices, you will meet other caste groups, individuals, girls and boys. You may fall in love, you want to marry the person. जब ऐसा करते हो तो क्या होता है? इंडोगैमी को you will cross. The line of endogamy you will cross. And here endogamy, when it mixes with girls status, pride, तो यहां पे ऑनर की बात होने लगती है. कास्ट ऑनर. Imagine an OBC man and an SC girl. इस केस में, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, यू विल सी कि ओबीसी मैन्स फैमिली विल नॉट रिसोर्ट टू वायलेंस अगेंस्ट देयर ओन सन फॉर मैरिंग एन एससी कास्ट गर्ल. बट जैसे ही लड़की के बारे में बात होती है तो जो पैट्रियार्कल नोशन है वो कहने लगता है कि यहाँ पे कास्ट ऑनर, फैमिली ऑनर को प्रॉब्लम हो रही, तो ऑनर किलिंग होती है जैसे हम कहते हैं. लेकिन यहाँ पे ऑनर किलिंग का फॉर्मेट क्या था? दे हैक्ड द इंडिविजुअल इन क्वेश्चन. तो इंडोगैमी एक ऐसी लाइन है जो मॉडर्न समाज के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर आज भी, डिस्पाइट ऑल द मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करंट्स, इंडोगैमी एज ए पिलर ऑफ कास्ट सिस्टम इज स्टिल स्टैंडिंग. रिचुअल हायरार्की इज सब्जेक्टेड टू चेंज. यस, इट्स एनी केस इज इमेजिनरी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं और
क्षत्रियाज नीचे हैं, हु अदर टू दिस, क्षत्रियाज डोंट अदर टू दिस इन एनी केस, इमेजिनरी है, ऑक्यूपेशन चेंज हो रहे हैं। लेकिन इंडोगैमी एक ऐसी चीज है जो कि आज भी स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। 90% से ज्यादा हमारी शादियां आज भी अरेंज मैरिजेस हैं जहां इंडोगैमी को देखा जाता है। कुंडली मिले ना मिले, जाति जरूर मिलनी चाहिए, दिस इज द की। सो हेयर दिस इंडिविजुअल crossed this line. So, despite constitutional protection, despite modernization in Indian society, despite Tamil Nadu as a bastion of anti-caste movements like self-respect movement of E.V. Ramaswamy, तमिलनाडु बेस्टन है एंटी कास्ट मूवमेंट का, और वहां पे सबसे ज्यादा वायलेंस होता है कास्ट रिलेटेड। तो कास्ट जो आइडेंटिटी है, जो कास्ट प्राइड है, वो आज भी इंटैक्ट है एज ए कॉन्शियसनेस। कास्ट इज स्टिल अलाइव। स्ट्रक्चर कास्ट का भले ही टूट रहा हो, ये स्ट्रक्चर है जो कि टूट रहा है, ऑक्यूपेशन चेंज हो रहा है, रिचुअल हायरार्की इज सब्जेक्टेड टू a lot of ridicule these days, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है that is still there, and that makes this incident far more horrific जो कि यहाँ पे हुआ है। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पे कि क्रीमी लेयर मीन्स व्हाट, educationally, economically well off segment of the Dalit castes also are subjected to discrimination. They are also subjected to violence. तो यहाँ पे ये एस्पेक्ट हमें देखना है, ये जो बात है, समझ में आई बात? तो दिस इज द की ऑफ दिस इशू। इस पे जो सवाल बनेगा वो ऐसा बनेगा कि इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली एडवांस दलित्स हाईलाइट द कास्ट हायरार्कीज परसिस्ट डिस्पाइट अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। कमेंट इन 150 वर्ड्स, ऐसा सवाल पूछा गया। So you can write the answer very well now. After understanding the topic, you can write very well. Definitely go for a try. Right. आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है इंडिया डिसाइसिव रोल इन द वर्ल्ड फाइट अगेंस्ट हंगर इज ए रिजल्ट ऑफ इट्स पॉलिसी इन्वेस्टमेंट इन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। अगस्त के महीने में, क्योंकि 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे था, तो काफी ये जो इशू है डोमिनेट किया कि इंडिया अपनी आजादी की 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, 79th ईयर हो चुका है, फिर भी वी हैव इश्यूज ऑफ माल न्यूट्रिशन। दिस इज ट्रू और नॉट? वी आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। देर इज एन एस्पेक्ट ऑफ स्टंटिंग, बच्चों की हाइट कम होना उम्र के हिसाब से। देर इज एस्पेक्ट ऑफ वेस्टिंग, हाइट के हिसाब से वजन ना होना, अंडर वेट होना, बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते हैं वो अंडर वेट होते हैं। और देन यू हैव एनीमिया इन यंग गर्ल्स। ये सारे इश्यूज हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा फूड प्रोडक्शन इतना तेजी से ऊपर गया है, गोडाउन्स हमारे भरे पड़े हैं अनाज से। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन मेनी cereal groups like these days rice, second largest producer in fruits, vegetables, you name it। उसके बाद भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स बनी। तो क्यों और कैसे ये इशू है? तो 1950s और 60s में बात होती थी फूड सिक्योरिटी की, कि इंडिया में फेमाइंस दोबारा नहीं आने चाहिए। लेकिन आज जो बात हमें करनी है वो करनी है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। दिस इज ए की थिंग हियर। तो कोर बात यह है कि ग्लोबल हंगर इज डिक्लाइनिंग। 673 मिलियन पीपल अंडर नोरिस्ड है फिर भी 2024 में, विच इज डाउन फ्रॉम 688 मिलियन इन 2023। प्री पैंडेमिक लेवल पे हम जा चुके हैं, रिकवरी की बात करें और इंडिया ने बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले किया है। इंडिया की अंडर न्यूरिशमेंट जो रेट है वो 14.3% थी कोविड के दौरान, कोविड के ठीक पहले, और अभी 12% हो गई है इन 2 सालों में, ट्रांसलेटिंग टू 30 मिलियन फ्यूअर पीपल फेसिंग हंगर। 30 मिलियन मीन्स 3 करोड़ पीपल। हाउएवर वो कह रहे हैं कि कैलोरिफिक जो सफिशिएंसी है इट इज इंप्रूव्ड, हाउएवर न्यूट्रिशनल क्वालिटी रिमेन्स ए चैलेंज। तो बात यहां पे ये है कि कैलोरी इनटेक हमारा बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज वी आर ईटिंग ए लॉट ऑफ सीरियल्स, राइस, wheat, we are eating a lot of it, but we are not eating proper nutrition in the form कि we should eat good carbs। हमारी डाइवर्सिटी होनी चाहिए खाने में, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड गुड फैट्स।
वी आर नॉट ईटिंग एनी ऑफ सच, बट हमारा फोकस क्या है, लॉपसाइडेड है। ये हम ज्यादा खा रहे हैं। इंडिया का पीडीएस सिस्टम भी इसको प्रमोट कर रहा है। सारा गवर्नमेंट का फोकस दाल, मतलब रोटी और वीट और राइस देने में ही, 1 रुपए किलो ले लो, 2 रुपए किलो ले लो। तो फोकस सारा इस पे, इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशनमेंट हो रहा है। ऑब्सिटी भी उसका एक अपोजिट साइड है। बहुत ज्यादा जंक फूड लोग खा रहे हैं, ओबीस होते जा रहे हैं, तो हेल्थ का क्राइसिस खड़ा हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो रेड फोर्ट में अपनी स्पीच में भी ओबेसिटी की बात की कि ओबीस होता जा रहा है भारत, विच इज ए वेरी प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट। सो यहाँ पे वो इसी चीज को फोकस कर रहे हैं कि ओवर 60% इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड ए हेल्दी डाइट ड्यू टू हाई प्राइसेस ऑफ न्यूट्रन रिच फूड एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम पोषण जैसी स्कीम्स हैं, आईसीडीएस जैसी स्कीम्स हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, दे आर एम्फसाइजिंग डाइटरी डाइवर्सिटी नाउ एंड न्यूट्रिशनल सेंसिटिविटी। मिलेट को प्रमोट कर रही है सरकार, इसको श्री अन्न कहा जा रहा है। यस, अपार्ट फ्रॉम इट गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर बायो फोर्टिफिकेशन। विटामिन ए को ऐड किया जा रहा है, जिंक को ऐड किया जा रहा है खाने के अंदर, राइस के अंदर। मिल्क का प्रोविजन किया जा रहा है मिड डे मील स्कूल्स में, बहुत जगहों पे एग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग डन। हमें लेकिन मूव करना है कंप्लीटली माइंडसेट, फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अपने एग्री फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। अपने प्रोडक्शन के अंदर डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी। मैक्सिमम इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ राइस और व्हीट का हो रहा है बिकॉज ऑफ एमएसपी, क्योंकि वहीं पे एमएसपी सबसे ज्यादा धरती के लेवल पे, लोकल लेवल पे मिलता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करना, एम्पावरिंग वुमेन एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, लेवरेजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक एग्री स्टैक एंड ई नैम। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टू बी डन, ये हमें करना पड़ेगा। फोर्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा, जो अवेलेबिलिटी है, जो कल्चरल चेंज है उसकी भी जरूरत है। एग्स का प्रोविजन जैसे होना चाहिए स्कूल्स के अंदर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पल्सेस का जो खाने के अंदर यूज है उसको बढ़ाना होगा, उसको भी गवर्नमेंट को पीडीएस के थ्रू पहुंचाना पड़ेगा। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है सन 2013 का, वो काफी बड़ी कवरेज प्रोवाइड करता है इंडिया की पॉपुलेशन को, ऑलमोस्ट 2/3, 67%। तो वी हैव टू इंश्योर कि इनको हम बेनिफिट पहुंचा सकें, और ये जो कल्चरल शिफ्ट है इसको लेके आ सके, ताकि पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, प्राइमरली। तो इसके ऊपर जो सवाल बनना है वो इस तरीके से आएगा कि इंडिया हैज लार्जली अचीव फूड सिक्योरिटी, yet nutritional security remains a persistent challenge. Distinguish between the two and critically examine the government of India's initiative aimed at addressing the country's nutritional deficits. इस तरह से सवाल बनेगा इसके ऊपर। इजी है डिस्टिंग्विश करना दोनों को। और जो इनिशिएटिव्स हैं जिसमें पीडीएस आएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आएगा, पोषण 2.0 आएगा, ये सारी स्कीम्स इसके अंदर आ जाएंगे। बायो फोर्टिफिकेशन आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर है? सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। आई विल अपलोड द फाइल ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इफ यू हैवंट जॉइंड इट, डू ज्वाइन। तो ये जो अगस्त का महीना था, इसमें ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट थीम्स थी इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस की। देयर विल बी ऑब्वियसली द मंथ ऑफ सितंबर क्लास आल्सो आफ्टर सम डेज, where we will meet again. Thank you for giving me your time. Like, subscribe, and share if you find the content useful for UPSC CSE.